Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor, and I hope that you all are watching all the videos of this chapter. If you left with any topic, then you won't be able to understand the next topic. So if you have not watched the videos, then you can go on our YouTube channel and see all the videos related to this topic. Right now, in the continuation of the chapter is matter around a sphere, we are here with the part 5 of the video, in which we are going to study concentration of a solution in case of liquid solute in liquid solvent. Clear? So students, as we have studied in last video that what is the concentration of a solution. Concentration of a solution was the amount of solute in a given amount of सॉल्यूशन, राइट. यानी किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहलाती है. अब वो था केस जब हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो. जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो तब हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया था. आई होप आपको याद हो. द फार्मूला वॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड दैट वॉज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. But now this is the second case of concentration of a solution when there is liquid solute in a liquid solvent. यानी जब solute और solvent दोनों ही liquid हों, solvent और solute दोनों ही क्या हों, liquid हों, उस केस में हमारा फॉर्मूला या हम concentration किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. सो सी द फॉर्मूला. concentration of solution is equal to volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Clear? Now see one numerical based on this formula. A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of the solution. Students, this example is just similar to the previous example that we have done in the previous video. In only the difference is that कि उसमें जो सॉल्यूट था वो हमारा सॉलिड था, वो हमें ग्राम्स में गिवन था, ठीक है. और यहाँ हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है, इसलिए हमें किस में है, ml में गिवन है क्वांटिटी. क्लियर? सो सी हमें क्या गिवन है. सबसे पहले हम वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन volume of solute. ठीक है. Now read the question again. A solution contains 50 ml of alcohol. What 50 ml of alcohol? Alcohol contain करता है एक solution. इसका मतलब ये क्या हुआ, ये solute हुआ. यानी 50 ml क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम ऑफ solute हुआ. Now और क्या दिया हुआ हमें, the volume of solvent. Volume of solvent क्या गिवन है आपको, mixed with 150 ml of water. आपको पता है कि जो लिक्विड में मिक्स किया जाता है, अभी यहाँ इन्होंने बोला एक सोल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्सड विद 150 ml ऑफ वाटर. यानी हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्वेश्चन से ही कि वाटर 150 ml वाटर में मिक्स किया गया है क्या, 50 ml एल्कोहल. इसलिए एल्कोहल क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है, और इसकी क्वांटिटी क्या गिवन है, 150 ml. क्लियर है? नाउ वी नो दैट अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट. नाउ इन फॉर्मूला वी नीड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वाइल हमें दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड आउट किया था मास ऑफ सॉल्यूशन, इसी तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
solute plus volume of solvent. Now put the value of volume of solute कितना गिवन है आपको 50 ml plus volume of solvent आपको कितना गिवन है 150 ml. Now add this, we will get 200 ml. Clear? Now put the value of volume of solution and volume of solute in the formula. Now the concentration of solution is equal to volume of solute कितना गिवन है आपको 50 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है आपका 200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लियर? नाउ सी इट मीन्स देयर इज 25% alcohol in the solution. This is the concentration of the solution that contains alcohol. Clear? This is our answer. Now students, in the third video of this chapter we have learned a term solubility 2. राइट हमने थर्ड पार्ट जो है इस चैप्टर का जो वीडियो हमने बनाई है थर्ड, उसमें आप देखेंगे कि हमने सॉल्युबिलिटी एक टर्म पढ़ी थी. तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी उस टर्म को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल डू अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. राइट नाउ सी द डेफिनेशन. The maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a specified temperature is called solubility of that solute in that solvent at that temperature. Means क्या कि अभी हम आपसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. क्लियर है? तो उसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, कितनी मैक्सिमम अमाउंट हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं. क्लियर? उसको उस सॉल्वेंट की क्या कहा जाएगी? सॉल्युबिलिटी कही जाती है. क्लियर है? सॉरी, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट. क्लियर? यानी या फिर हम एक छोटी सी डेफिनेशन से और से समझ सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? उस सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, वो भी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है. तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द solubility of solute in that solvent. Clear? Now see one example based on this topic. See, 12 gram of potassium sulfate dissolves in 70 grams of water at 60 degrees centigrade. Temperature matters here, right? What is its solubility in water at that temperature? Means 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट जो है वो 75 ग्राम्स ऑफ वाटर में क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है. किस टेम्परेचर पे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो पूछ रहे हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कितनी होगी. ठीक है? सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर वो 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पोटेशियम सल्फेट मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है, वो हमें निकालना है. और वही हमारा सॉल्युबिलिटी होगी किसकी? पोटेशियम सल्फेट की वाटर में. क्लियर है? एक बार और समझ लीजिए कि हमें गिवन है कि 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट क्या हो सकता है? डिजॉल्व हो सकता है, वो भी इस टेम्परेचर पर. क्लियर है? हमें निकालनी है इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ what पोटेशियम सल्फेट इन वाटर और एट दिस टेम्परेचर. हमें इस पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है वाटर में. और सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जब 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट मिक्स हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना पोटेशियम सल्फेट मिक्स या डिजॉल्व हो सकता है, हमें ये फाइंड आउट करना है. क्लियर है? तो सी किस तरीके से इसको करेंगे हम. हमें क्या गिवन है? See, we will write like this: 75 gram of water dissolves कितना? 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट. यानी 75 ग्राम वाटर कितना पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व करता है? 12 ग्राम. क्लियर है? नाउ 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिजॉल्व करेगा? 12/75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट. और 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना डिजॉल्व करेगा?
12/75 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आप मैथ में बहुत कर चुके हैं, सिर्फ अब इसको सिंपली सॉल्व करना है एंड यू विल गेट 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है? यानी अगर 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजोल्व कर सकता है 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना पोटेशियम सल्फेट डिजोल्व कर सकता है? 16 ग्राम। और यही 16 क्या हुई? इसकी सॉल्युबिलिटी हुई, यानी 16 ग्राम सॉल्युबिलिटी हुई किसकी? पोटेशियम सल्फेट की। किस में? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। और किस टेम्परेचर पे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है?